Hello dear students, today we will start the last exercise of chapter 19, that is exercise 19.3. Dear students, exercise 19.3 is about probability. Before understanding what is probability, we will first understand what is outcome, experiment and event. Suppose we are rolling a dice and tossing a coin. These are experiments. टॉसिंग अ कॉइन, जब भी हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, एक्सपेरिमेंट. एंड रोलिंग अ डाइस, दीज आर एक्सपेरिमेंट्स. और जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आउटकम्स होगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. सो हेड और टेल हमारे पास क्या होती हैं, आउटकम्स. सिमिलरली जब हम डाइस को रोल करते हैं तो क्या क्या आउटकम आ सकती है, 1 2 3 4 5 और 6. These are also outcomes. Clear? Now what is event? Suppose when we are tossing a coin, one event of this experiment is landing on heads. Clear? So what is probability for an event A? The number of ways an event A can occur divided by the total number of possible outcomes. A certain event, students, what is certain event? A certain event has a probability of 1. When the probability is 1, then we can say that this event is certain. That means 100% chance of happening. मतलब वो चीज़ 100% होगी ही होगी. सपोज अगर बादल आ रहे हैं मतलब बारिश 100% होगी ही होगी. सो दिस इज अ सर्टेन इवेंट. एन इम्पॉसिबल इवेंट हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0. अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है तो हम उसको प्रोबेबिलिटी क्या बोलेंगे, 0 है, 0% चांस ऑफ हैपनिंग. ऑल अदर प्रोबेबिलिटीज लाई बिटवीन 0 एंड 1. क्लियर? जो भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं होगी. प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन 0 एंड 1. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज अ करेक्ट आंसर. एक करेक्ट आंसर को चूज करना है. फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेरिमेंट. इन चारों में से कौन सा एक्सपेरिमेंट है. फर्स्ट इज टॉसिंग अ कॉइन, सेकेंड इज रोलिंग अ सिंगल 6-sided die, third is choosing a marble from a jar, fourth is all of the above. Student, tossing a coin is an experiment, rolling a single 6-sided die is also an experiment, and choosing a marble from a jar, it is an experiment. So what is the correct answer? Option number 4, all of the above. Second is which of the following is an outcome. Second question is which of the following is an outcome. First option, rolling a pair of dice, coin landing on heads, choosing 2 marbles from a jar, and last one is none of the above. What is the correct answer? Which is an outcome? Coin landing on heads. So option number second is an correct answer. Students, equally likely outcomes means that the outcomes which have same theoretical probability. Suppose अगर हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो हर एक नंबर की probability क्या होगी, 1/6. बिकॉज 6 नंबर्स हैं. सपोज अगर 1 की probability निकालेंगे तो 1/6 आएगी, 2 की probability निकालेंगे तो 1/6 आएगी, 3 की probability निकालेंगे तो भी 1/6 आएगी. सो सेम theoretical probability है. सो इस ऑप्शन में देखो, चूजिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 to 7, हर एक नंबर की सेम प्रोबेबिलिटी होगी, क्या होगी, 1/7. कॉइन को टॉस करेंगे तो कौन सी आउटकम्स होती हैं, हेड और टेल. हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी. सो दीज आर ऑल्सो इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड दीज आर ऑल्सो इक्वली लाइकली आउटकम्स. थर्ड इज चूजिंग अ लेटर एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड स्कूल. इसमें देखो एस की टोटल लेटर्स कितने हैं, 6 है. एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6. सी की प्रोबेबिलिटी 1/6.
H की प्रोबेबिलिटी 1/6, बट जब हम O की प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी 2/6. So these are not equally likely outcomes. So this experiment does not have equally likely outcomes. Clear? So third option is correct answer. Next, B part. Answer the following question. First question is, what is the probability of choosing a vowel from the English alphabet? Total letters कितने होते हैं alphabets में? 26 and vowels A, E, I, O, U. That means 5 vowels. Then what is the probability of vowels? Number of कितनी outcomes है 5, total outcomes कितनी है 26. So this is the probability. Second question is, a number from 1 to 11 is chosen at random. What is the probability of choosing an odd number? Total numbers कितने हैं 11 और probability किसकी सॉल्व करनी है odd numbers की. 1 से 11 तक कौन कौन से odd numbers होते हैं? 1 से 11 तक odd numbers होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 and 11. That means 6 odd numbers. So probability of choosing an odd number is 6/11. Third question is, what is the probability of getting either 2, 4, 5 or 6 in one throw of a die? जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें से 2, 4, 5 और 6 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अ डाई इज थ्रोन वंस, एक बार ही डाई को थ्रो किया गया. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर 2, 4, 5 और 6. कितने नंबर्स हो गए टोटल 4. टोटल आउटकम 6. सो on the table of 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. That means 2/3 is your answer. Fourth question is, what is the probability of drawing a 10 from a deck of 52 cards? 52 cards होते हैं टोटल, उसमें से 10 numbers वाले कितने cards होते हैं? 4 colors हैं. So 10 numbers वाले कितने cards होंगे? 4. So what is the probability of drawing a 10? That means 4/52. देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 52. नंबर ऑफ कार्ड्स शोज 10 इज इक्वल टू 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ 10 इज इक्वल टू 4/52. यू कैन कैंसल इट ऑन द टेबल ऑफ 4. 4 1s are 4, 13 4s are 52. So 1/13 is your answer. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ पिक्चर कार्ड? पिक्चर कार्ड कौन कौन से होते हैं? जैक, क्वीन और किंग फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स. सो टोटल कार्ड्स अगेन 52. नंबर ऑफ पिक्चर कार्ड्स जैक, क्वीन और किंग. जैक के भी 4 कार्ड्स होते हैं, क्वीन के भी 4 कार्ड्स और किंग के भी 4 कार्ड्स. टोटल कितने कार्ड्स हो गए पिक्चर कार्ड्स? 12. So probability of drawing a picture card is 12/52. You can cancel it on the table of 4. So 4 3s are 12, 13 4s are 52. 3/13 is your answer. Next one is, a bag contains 4 blue, 4 red, 6 yellow and 10 white marbles. टोटल कितने मार्बल्स हुए? 4 ब्लू है, 4 रेड, 6 येलो एंड 10 वाइट. 4 + 4 is 8, 8 + 6 is 14 and 14 + 10 is 24 marbles. There are total 24 marbles. What is the probability of drawing the following? इन सभी की प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी है. विच ऑफ दीज इज अ सर्टेन इवेंट. लास्ट में हम बताएंगे इसमें से सर्टेन इवेंट कौन है, कौन सा है. सर्टेन इवेंट वही होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी. फर्स्ट वन इज ब्लू मार्बल. ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले ब्लू मार्बल है कितने? 4. टोटल मार्बल्स हमने कितने काउंट किए? 24. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लू मार्बल? इट विल बी 4/24. So this is the probability 4/24. You can cancel it on the table of 4. So 1/6. Next is for yellow marble. Number of yellow marbles are 6. So 6/24. That means 1/4. Third is for red marbles. Red marbles are 4. So 4/24. That means 1/6.
Fourth one is probability for white marble. White marbles are 10, so 10 over 24, that means 5 over 12. Fifth is probability of drawing a blue or a yellow. नाउ ब्लू और येलो दोनों की प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी है. ब्लू कितने थे 4 और येलो हमारे पास कितने हैं. सो 4 and 6 कितने हो गए 10. सो 10 over 24, दैट मीन्स 5 over 12. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड और वाइट मार्बल्स. रेड मार्बल्स कितने थे 4 और वाइट कितने थे 10. टोटल कितने हो गए 14. सो 14 over 24, दैट मीन्स 7 over 12. सेवंथ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड येलो और वाइट. रेड येलो और तीनों को प्लस करके आ जाएगा 20 मार्बल्स. सो 20 over 24, दैट मीन्स 5 over 6. लास्ट एट्थ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड ब्लू येलो और वाइट. चारों मार्बल्स टोटल कितने हैं 24 एंड टोटल 24, दैट मीन्स 1. सो विच इवेंट इज विच इज एन सर्टेन इवेंट. एट्थ इज सर्टेन. Hope this exercise is clear to you. Now let's start chapter number 12. Chapter number 12 is lines and angles. In this chapter, students, you will able to recognize adjacent angles, linear pair, supplementary and complementary angles and vertically opposite angles. पैरेलल लाइंस को डिफाइन करोगे. रिकॉग्नाइज ट्रांसवर्सल्स. रिकॉग्नाइज टाइप्स ऑफ एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल कटिंग पैरेलल लाइंस. फर्स्ट इज कंप्लीमेंट्री एंगल्स. कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं. टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री व्हेन दे ऐड अप टू अ राइट एंगल्स. मीन्स जब भी हम टू एंगल्स को ऐड करते हैं और उसका आंसर 90 डिग्री आ जाए, राइट एंगल आ जाए, सो दैट मीन्स वो दोनों एंगल्स क्या होंगे कंप्लीमेंट्री. एंड ईच एंगल इज कंप्लीमेंट टू अदर. सपोज हम 60 डिग्री एंड 30 डिग्री ले रहे हैं, इसका सम कितना आ गया 90 degree. That means 60 degree and 30 degree are complementary angles, and we can also say that 60 degree is complement to 30 degree and 30 degree is complement to 60 degree. Next is supplementary angles. Two angles are supplementary when they add up to a straight angle. Straight angle means 180 degree. Each angle is said to be supplement of the other. जब हम दो एंगल्स को प्लस करके हमारा आंसर आ जाए 180 डिग्री, दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. सपोज वी आर टेकिंग 60 डिग्री एंड 120 डिग्री. 60 plus 120 is 180. दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंड वी कैन से दैट 60 डिग्री सप्लीमेंट टू 120 डिग्री एंड 120 डिग्री सप्लीमेंट ऑफ 60 degree. Next is adjacent angles. Two angles which have a common side, arm and a common vertex, that means corner point, with their other arms lying on the opposite sides of the common arm are called adjacent angles. Students, see figure. In this figure, angle 1 and 2 are adjacent angles. How? Because first one, these have a common vertex O, and we can name the first angle as BOA and second angle as COB. OB is a common arm. The two arms OA and OC are on opposite sides. So these two angles are adjacent angles. Next is linear pair. Two angles are said to form a linear pair if they are adjacent angles formed by two intersecting lines. A linear pair is a pair of adjacent supplementary angles. You can see the figure. This angle forms a linear pair, and these two angles are adjacent angles. They have a common arm BO and a common vertex O. And students, a linear pair is a pair of adjacent supplementary angles. ये दोनों एंगल्स क्या होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स. मीन्स जब हम दोनों को प्लस करेंगे इसका सम क्या आएगा 180 डिग्री. सो लीनियर पेयर हमेशा कौन सा एंगल फॉर्म करेगा 180 डिग्री.
Next is vertically opposite angles. Suppose we are taking these two lines. This angle and this angle are vertically opposite angles. Angle 1 and angle 2 are vertically opposite angles. Similarly, angle 3 and angle 4 are vertically opposite angles. So now let's start exercise 12.1. First question is study the figure and answer the given questions. ये आपके पास एक फिगर दी हुई है. Name two pairs of angle that form a linear pair. दो पेयर्स बताने हैं एंगल्स के जो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं. सबसे पहले लीनियर पेयर के हमने क्या पढ़ा है कि दो एंगल्स जो एडजेसेंट हैं एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. सो फिगर को ध्यान से देखो और देखो कौन से पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं जो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं. स्टूडेंट, डी बी एफ एंड डी बी ए. देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है क्योंकि दोनों को प्लस करके कहा जाएगा 180 डिग्री. सेम ई सी एच एंड एच सी जी, एक तो दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं एंड ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर. सो एंगल डी बी एफ, एंगल ए बी डी फॉर्म्स अ लीनियर पेयर. अनदर पेयर इज एंगल ई सी एच एंड एंगल जी सी एच. सेकेंड क्वेश्चन इज are angle ACH and angle ABD adjacent angles? Why? Angle ACH, where is angle ACH? ACH. Angle ABD, angle ABD, क्या ये दोनों adjacent angles हैं? No, because they do not have a common arm and a common vertex. Third is, do angle FBC and angle GCB form a linear pair? Angle FBC and angle GCB. No, they do not form a linear pair. Second question is, OA and OX are opposite rays. OA and OX are opposite rays. C, D and E are points outside of line AX. C, D and E are points and on the same side of it. Do the following pairs of angles form a linear pair? First is angle COA and angle COX. COA and COX. Yes, these form a linear pair. Second, COA and COD. COA and COD. Do they form a linear pair? No. Angle COX and angle COE. No, they also not form a linear pair. Third question is, do adjacent angles always form a linear pair? Explain with suitable illustrations. What are the two factors that make you decide whether a pair of adjacent angles form a linear pair? क्या जो adjacent angles होते हैं हमेशा linear pair form करते हैं? नो स्टूडेंट्स, हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि COA एंड COD ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है, पर ये लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते. लीनियर पेयर की और हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री. क्लियर. सो हम ये वाली एग्जांपल इस क्वेश्चन में दे सकते हैं. व्हाट आर द टू फैक्टर्स? फर्स्ट फैक्टर इज कि उनके पास एक कॉमन आर्म हो और सेकंड फैक्टर इज एडजेसेंट एंगल शुड बी सप्लीमेंट्री. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फिगर्स गिवन बिलो. ये हमारे पास कुछ फिगर्स दिए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज लेबल ईच फिगर डिफरेंटली. यू मे यूज द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट और नंबर्स टू डिनोट एंगल्स. हमने पहले इनकी क्या करनी है, नेमिंग करनी है, लेबल करना है. आप कोई भी लेटर्स अल्फ़ाबेट्स के यूज़ कर सकते हो या कोई नंबर्स यूज़ कर सकते हो. लेट्स सी इन योर रिटन असाइनमेंट. I have labeled first figure as A, B, C, D. Second figure as E, F, G, H. Third as I, J, K, L. Fourth as M, N, O, P. E, Q, R, S, T.
and last figure as u, v, w, x and y. Second question is name the pairs of angles which are supplementary. वो पेयर्स लिखने हैं जो कि सप्लीमेंट्री हैं. सप्लीमेंट्री मीन्स जिन दोनों को प्लस करके क्या आता है 180 डिग्री. सो सारी फिगर्स को ध्यान से देखो. हमने देखना है कि किस फिगर में दो एंगल्स 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं. क्या फर्स्ट फिगर में लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. यस, ए डी बी एंड ए डी सी सप्लीमेंट्री हैं क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है 180 डिग्री. इन सेकंड फिगर क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? नो. थर्ड फिगर नो. फोर्थ नो, 180 डिग्री नहीं बनेगा. फिफ्थ यस, क्यू आर टी एंड एस आर टी फॉर्म सप्लीमेंट्री एंगल्स. एफ यस, यू वी एक्स and UVY they form supplementary angles, and you can also take WVX and WVY. Third question is name the pairs of angles which are complementary. Complementary means अब वो pairs of angles जो add होके क्या सम दे रहे हैं 90 डिग्री. क्या फर्स्ट फिगर में 90 डिग्री सम बन रहा है? नो. सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं बन रहा, फोर्थ में यस. कौन से एंगल फॉर्म कर रहे हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स? एम एन ओ, एंगल एम एन ओ एंड ओ एन पी. ई ई नो. एफ यस, यू वी डब्ल्यू एंड डब्ल्यू वी वाई मेक कंप्लीमेंट्री एंगल्स. Angle UVW and angle WVY. Fourth is does any pair of supplementary angles also include a pair of complementary angles? Name them. क्या कोई ऐसा पेयर है सप्लीमेंट्री एंगल का जिसमें कंप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड हो? या स्टूडेंट आपने एफ फिगर में देखा था कि यू वी एक्स एंड यू वी वाई ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. इसमें से एक कंप्लीमेंट्री एंगल के भी दो पेयर आ रहा है, यू वी डब्ल्यू एंड डब्ल्यू वी वाई. दीज आर कंप्लीमेंट्री. सो सप्लीमेंट्री एंगल में हमारे पास क्या आ गए? कंप्लीमेंट्री एंगल्स. सो सप्लीमेंट्री एंगल्स आ गए एंगल डब्ल्यू वी वाई, एंगल डब्ल्यू वी एक्स, एंड कंप्लीमेंट्रीज एंगल्स आ गए एंगल डब्ल्यू वी वाई and angle WVU. Last question is which figures neither have a pair of supplementary angles nor a pair of complementary angles? What kind of angle are they? कि कौन सी फिगर है जिसमें ना तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और ना ही कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. सो कौन सी फिगर है? फिगर बी, इसमें ना तो कंप्लीमेंट्री है ना ही सप्लीमेंट्री. फिगर सी, फिगर डी में तो कंप्लीमेंट्री है. फिगर ई में भी है, फिगर एफ में भी है. सो बी एंड सी. फिफ्थ क्वेश्चन आंसर द गिवन क्वेश्चंस. कैन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स बी कंप्लीमेंट्री? क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर कंप्लीमेंट्री हो सकते हैं? आंसर इज नो. सेकेंड इज आर अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑलवेज सप्लीमेंट्री? क्या जो एडजेसेंट एंगल्स के पेयर हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं? एक्सप्लेन योर आंसर विद एन इलस्ट्रेशन. आंसर इज अगेन नो. स्टूडेंट ये फिगर को देखो, इसमें एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स. बट ये क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं? क्या इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आएगा? नो. थर्ड इज कैन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर? आंसर इज यस. Fourth question is can a pair of complementary angles form a linear pair? Answer is no, because complementary angles का सम क्या होता है 90 डिग्री और linear pair के लिए सम क्या होता है 180 डिग्री. So answer is no. Fifth is can the pair of angles forming supplementary angles be equal? Second is complementary angles be equal. What is the measure of each in such case? क्या जो हम दो सप्लीमेंट्री एंगल्स ले रहे हैं क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं? आंसर इज यस. सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन सम इज 180 डिग्री
वो दो एंगल कौन से हैं जो दोनों इक्वल हैं और दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आएगा? द मेजर इज 90 डिग्री। सेकेंड इज कम्प्लीमेंट्री के लिए क्या होगा मेजर, हमारा एंगल कौन सा होगा? 45 डिग्री। 45 प्लस 45 इज 90। ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं? एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज ऑब्ट्यूज। सो अगर एक एंगल 90 और 180 के बिटवीन का है और दूसरा एंगल फिर कैसा होगा? व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज द अदर? सेकेंड एंगल विल बी ऑफ टाइप acute angle. Seventh is if two angles are complementary, can one of them be obtuse? Why? No, none of them can be obtuse because in complementary angles the sum is 90 degree. Sixth question is identify the complementary and supplementary pairs of angles. Means इसमें से हमने पेयर चूज करना है कि कौन सा पेयर सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहा है, कौन सा कंप्लीमेंट्री। 47 प्लस 43, which type of these are angles? These are complementary angles. 86 degree and 4 degree complementary, 86 degree and 94 supplementary, 120 and 60 degree supplementary. So you can identify the rest of the you can identify others. Seventh, give the complements of the following angle. First angle is 12 degree. Complement of 12 degree क्या होगा? complement 12 degree का 90 minus 12 that is 78 degree. Eighth is give the supplements. First angle is 22 degree. So supplement of 22 degree will be 180 degree minus 22, that is 158 degree. Ninth question is if an angle is 4 times its supplement, how much does each of them measure? First let the two angles be x and y. According to question उन्होंने क्या बोला है कि जो एंगल है वो 4 टाइम है अपने सप्लीमेंट का, मीन्स लेट x एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ y, दैट इज x इज इक्वल टू 4y. नाउ सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जिनका सम क्या होता है? 180 डिग्री, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 180. x की ऊपर वैल्यू क्या है? 4y. So 4y plus y is equal to 180, that means 5y is equal to 180. y will be 180 divided 5, that is 36. So y is equal to 36. Put the value of y in equation 1. So x is equal to 4 multiply 36, that is 144. Solve question number 10 by yourself. Question number 11 is find the values of x, y and z in the following figures. This is your first question. Students ये ध्यान से देखो, एंगल x प्लस एक्स बाई टू ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, x प्लस एक्स बाई टू. सो वी कैन राइट इट एज एंगल x प्लस एंगल x बाई टू इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर है. एलसीएम लेंगे, 2 एंगल x प्लस एंगल x ओवर 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट मीन्स 3 एंगल x डिवाइड 2 इज इक्वल टू 180. 2 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 एंगल x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 2 इज 360. सो एंगल x इज इक्वल टू 360 डिवाइड 3, दैट इज 120 डिग्री. सो x की वैल्यू आ गई 120. सिमिलरली एंगल x प्लस एंगल y फॉर्म अ लीनियर पेयर. ठीक है. सो एंगल x की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 120. 120 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180. सो एंगल y विल बी 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री. So here angle y plus angle z also form a linear pair. So what is the value of angle y? 60 degree plus angle z is equal to 180 degree. So angle z is equal to 180 minus 60, that is 120 degree. Try to solve the other figures by yourself. Thank you.